Hello students, welcome to today's class 10th economics session. I hope you all are doing well. Today we are going to start a very interesting and important chapter from your class 10th economics syllabus, that is money and credit. Before we begin, let me ask you a simple question. Children, can you imagine your life without money? जरा सोचिए, अगर मनी ही न हो तो हमारी डेली लाइफ कैसी होगी? नो बाइंग फूड, नो पेइंग स्कूल फीस, नो शॉपिंग, नो ट्रांसपोर्ट, नो मोबाइल रिचार्ज एंड नो ऑनलाइन पेमेंट। यानी हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। But have you ever wondered, is money just a piece of paper or a metal coin? If your answer is yes, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। Children, money is much more than that. It is a symbol of trust, a measure of value, and one of the greatest invention in human history. सिंपली अगर हम कहें तो मनी ने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। मनी कनेक्ट्स पीपल, सपोर्ट्स बिजनेसेस, ड्राइव्स ट्रेड एंड कीप्स द एंटायर इकोनॉमी रनिंग स्मूथली। इसी वजह से मनी को इकोनॉमी की बैकबोन भी कहा जाता है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, why it became necessary and how it has changed over time. तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर लर्निंग अबाउट मनी, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। वाई शुड वी स्टडी मनी? आखिर हमें मनी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है? सो चिल्ड्रन, almost everything we do in our daily life involves money. Whether we buy vegetables, pay our electric bills, recharge our phone or purchase books, हर जगह मनी का यूज़ होता है। Money has become an essential part of modern life. It is not just currency in our pockets or numbers in our bank account. It is a medium that makes buying, selling, and exchanging goods and services simple and convenient. यानी मनी के बिना बाइंग एंड सेलिंग करना इतना इजी नहीं होगा। विदाउट मनी आवर डेली लाइफ वुड बिकम मच मोर डिफ़िकल्ट। सो चिल्ड्रन, in this presentation we will understand what money is, why it is so important, how it evolved over time, and the different forms it has taken. So let's begin our journey into the fascinating world of money. Children, now let's explore the journey of money. क्या मनी शुरू से ही मौजूद थी? The answer is no. In ancient times, money did not exist. People exchanged goods directly with each other. उस समय लोगों के पास नोट्स, कॉइन्स या डिजिटल पेमेंट जैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। Over time, different forms of money were introduced to make trade easier and more convenient. And this gradual development is known as the evolution of money. यानी मनी भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ है। बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, पीपल स्टिल हैड नीड्स एंड वॉन्टेड टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा तो नहीं है कि जब तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोगों के पास नीड्स नहीं थी, है ना, या वो अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं करते थे। तो क्वेश्चन इज़ दैट कि जब मनी नहीं था
तब लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें कैसे लेते थे? तो चिल्ड्रन, दे एक्सचेंज वन प्रोडक्ट फॉर अनदर. They exchange one product from another, and this practice became known as exchange. Exchange became the foundation of trade and economic activities. यहीं से ट्रेड की शुरुआत हुई और आगे चल के इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ. The earliest method of exchange was the barter system. ये जो तरीका था एक्सचेंज करने का ये कहलाता था बार्टर सिस्टम. इन द बार्टर सिस्टम goods and services were exchanged directly without using money. For example, a farmer could exchange wheat for clothes or vegetables. यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती थी और उसमें मनी का कोई यूज़ नहीं होता था. At that time, this system worked well because people's needs were limited. उस समय लोगों की ज़रूरतें इतनी अनलिमिटेड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ी इस सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स आने लगी. Now we are going to discuss the main features of the barter system. Children, barter system had some important features like there was no use of money. Goods and services were exchanged directly. Exchange took place only when both parties agreed. The value of goods was decided by mutual agreement. यानी दोनों लोगों की सहमति होना बहुत ज़रूरी था, तभी एक्सचेंज हो सकता था. एक के पास जो चीज़ है दूसरे के पास उस चीज़ की नीड होनी चाहिए थी और दूसरे के पास जो है वो पहले वाली जो फर्स्ट पार्टी है उसको वो नीड होनी चाहिए थी. यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं. यहाँ पर एक पोर्टर दिखाई दे रहा है आपको जिसका नाम है रामविलास. तो ये जो प्रॉब्लम थी जिसमें नीड होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, तो रामविलास एक पोर्टर है. He makes pots and wanted to exchange his pots for some clothes. He visited all nearby cloth makers. सारे आसपास के जो कपड़े बनाने वाले हैं उनके पास वो जाता है, बट कोई भी उसको क्लोथ देने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि किसी भी क्लोथ मेकर को पोट्स की नीड नहीं है. उन्हें अपने क्लोथ्स के बदले में कुछ और चीज़ें चाहिए. तो ये जो प्रैक्टिस थी बार्टर सिस्टम की ये थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि दोनों ही पार्टी के पास जो है वो उस चीज़ की नीड होनी चाहिए जो एक दूसरे के पास है जिसे वो एक्सचेंज करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी. दूसरा, गुड्स कुड नॉट ऑलवेज बी डिवाइडेड इक्वली. कैसे सामान को आप बांटेंगे इक्वल? ठीक. वन मोर प्रॉब्लम वॉज ऑल्सो देयर एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टोर वैल्यू फॉर फ्यूचर यूज़. तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से पीपल को ये फील हुआ कि अब एक बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है, एक नया कोई सिस्टम होना चाहिए. और टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द बार्टर सिस्टम मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. Money made buying and selling easier, saved time, and became widely accepted as a medium of exchange. और यहीं से मॉडर्न मनी सिस्टम की शुरुआत हुई जिसे आज हम सब यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द जर्नी फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू मनी. Definition of money. Now that we have understood how money evolved, so let's understand what
मनी एक्चुअली इज। क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में मनी की डेफिनेशन क्या है। तो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड as a medium of exchange, a measure of value, and a store of value. In simple words, money is anything that everyone accepts for buying goods and services. यानी अगर कोई चीज़ सभी लोग पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो उसे मनी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, when you go to a shop and buy a notebook, then the shopkeeper accept your payment because money is accepted by everyone. Now we will discuss the functions of money. So let's understand them one by one. Medium of exchange. Already we have discussed कि मनी जो है वो एक्सचेंज का मीडियम है। सेकेंड, मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स वी कैन सेव मनी टुडे एंड यूज इट वेन एवर वी नीड इट इन द फ्यूचर। ना, हम उसको सेव करते हैं, भविष्य में हमें जब ज़रूरत होगी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अनलाइक मैनी गुड्स, मनी डज नॉट स्पॉइल और लॉस इट्स यूज़फुलनेस क्विकली। ये ख़राब तो होती नहीं। सपोज़ करिए आप वीट अगर स्टोर करके रखना चाहें, कितने टाइम रख सकते हैं? बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते। यही रीज़न है कि लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट फ्यूचर नीड्स के लिए सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सेव 1000 टुडे, you can use it after a few months whenever you need it. The next function of money is measure of value. Children, money provides a common standard to measure the value of different goods and services. For example, we can easily compare the price of a book with the price of a mobile phone because both are measured in money. सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी वैल्यू हम किस में मेज़र करते हैं? मनी में। कि इस मोबाइल फ़ोन की वैल्यू इतनी है या इस बुक की वैल्यू इतनी है। अगर मनी नहीं होता तो अलग अलग चीज़ों की वैल्यू कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, बिना मनी के हम इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू कैसे मेज़र करते? द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। चिल्ड्रन, money makes it easy to transfer wealth from one person to another or from one place to another. Today, with banks and digital payment system, transferring money has become very fast and convenient. आज हम कुछ ही सेकंड्स में यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहीं पर भी बैठे हों और हमें कहीं भी ट्रांसफ़र करनी है अपने रिलेटिव को, फैमिली मेम्बर्स को, तो हम सेकंड्स में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इट मीन्स मनी कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स दैट विल बी मेड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन टेक्स अ लोन टुडे, किसी ने आज लोन लिया, they repay it later using money. यानी बोरोइंग एंड लैंडिंग तभी इजीली पॉसिबल होती है जब मनी अवेलेबल हो। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। मनी इन इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी इन इंडिया। चिल्ड्रन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? The official currency of India is the Indian rupee. It is issued and regulated by the Reserve Bank of India.
RBI, which is the central bank of our country. यानी इंडिया में करेंसी इशू करने का जो राइट है वो किसके पास है? RBI के पास होता है. Every currency notes carries the promise of the Reserve Bank of India, which makes it acceptable throughout the country. इसी वजह से हम पूरे इंडिया में एक ही करेंसी का यूज़ करते हैं. Children, modern currency is known by different names based on its characteristics. अब हम मॉडर्न करेंसी के कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स को स्टडी करेंगे. सिंबॉलिक और टोकन मनी. The first type is symbolic or token money. The value written on the currency is much higher than the value of the material used to make it. For example, the paper used to make a 500 note is not worth 500. Children, जो written है करेंसी के ऊपर वो मच हाइयर देन द वैल्यू ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक इट. अब एक 500 के नोट की अगर हम बात करें तो उसे बनाने में कितना ही खर्च आया होगा चिल्ड्रन, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 500. एंड स्टिल एवरीवन एक्सेप्ट इट बिकॉज द गवर्नमेंट एंड RBI गारंटी इट्स वैल्यू. यानी उसकी वैल्यू उसके पेपर की नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की गारंटी की वजह से होती है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ इज हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी इज द मनी issued directly by the central bank. It includes currency notes, coins, and the reserves that commercial bank keep with the RBI. Children, इसे बेस मनी भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे मनी सप्लाई की फाउंडेशन होती है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ मनी, its important functions, money in India, and the different names of modern currency. अब तक हमें ये समझ आ गया कि मनी ओनली बाइंग एंड सेलिंग का मीडियम नहीं है बल्कि इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. Now that we have understood money, let's move to another very important part of our economy, that is बैंक. अब आप सभी ने बैंक का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि बैंक का एक्चुअल वर्क क्या होता है? चिल्ड्रन, अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल, provides loans and offers many other financial services. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बैंक वह प्लेस होता है जहाँ पर हम अपना मनी सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं और नीड होने पर लोन भी ले सकते हैं. बैंक्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री because they encourage people to save money and provide financial support to individuals and businesses. यानी बैंक लोगों की सेविंग को सेफ रखने के साथ साथ इकोनॉमी की ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ बैंक. क्या बैंक का काम सिर्फ मनी जमा करना और निकालना है? नहीं, बैंक इसके अलावा भी कई इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है. सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ अ बैंक आर
First, accepting deposits from customer. For example, मेरे पास एवरी मंथ के सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसा मेरा बचता है, जो मनी बचती है, उसे मैं अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती हूँ या आप कर सकते हैं, और इसको बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. फॉर एग्जांपल, मुझे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई और नीड है, मुझे घर बनाना है और उसके लिए मुझे लोन लेना है, तो बैंक मुझे वो लोन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. देखिए, हमारे पास बैंक अकाउंट है तभी हम एबल होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए. बैंक प्रोवाइड अस ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड UPI सर्विसेज. कीपिंग वैल्यूएबल सेफ थ्रू लोकर फैसिलिटीज़. हमारे पास गोल्ड है या कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको हम सेफली बैंक के लोकर में रख सकते हैं. तो चिल्ड्रन, आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जिससे हमारा काम और भी इजी हो गया है. ये सारे फंक्शंस मेजर फंक्शंस हैं बैंक के जो एक बैंक करता है. अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें बैंक की, although banks perform many functions, children, but there are two main functions that are the most important. और वो दो कौन से हैं? Accepting deposits. Bank accept money from customer and keep it safely. People can deposit their money whenever they want and withdraw it whenever required, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट. इससे लोगों की मनी सेफ भी रहता है और उस पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट काम, प्रोवाइडिंग लोन्स. बैंक lend money to people for different purposes such as education है, business, agriculture, buying a house और purchasing a vehicle. इन सब के लिए जो बोरोवर्स हैं वो बैंक से बोरो कर सकते हैं मनी. द बोरोवर हैज़ टू रिपे द लोन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. यानी बैंक ज़रूरत के टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है. अभी हमने बात की डिपॉजिट्स की कि डिपॉजिटर्स जो हैं वहाँ पर अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. क्या सभी बैंक अकाउंट्स एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं. अलग अलग नीड्स के अनुसार बैंक्स अलग अलग टाइप्स के डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं. मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं डिपॉजिट्स के? सेविंग डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट जिसे FD कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट RD. सो चिल्ड्रन, let's understand them briefly. A saving deposit is mainly meant for people who want to save their money. It allows customers to deposit and withdraw money whenever required. Banks also pay interest on the balance available in the account. ये अकाउंट स्टूडेंट्स, सैलरीड पर्सन और फैमिलीज़ द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है चिल्ड्रन, सेविंग डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट्स. दूसरा है करंट डिपॉजिट. अ करंट डिपॉजिट इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर बिजनेसमैन एंड कंपनीज.
It allows unlimited deposits and withdrawals. चिल्ड्रन, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको डेली बहुत सारा ट्रांजैक्शन करना होता है ना, डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उनके द्वारा करंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं बैंक्स में और उनका यूज़ किया जाता है। जनरली बैंक्स डू नॉट पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स, क्योंकि उसमें डेली का इतना ट्रांजैक्शन होता रहता है ना। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक दिन में कई बार होते हैं, इसलिए ये अकाउंट उनके लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी भी बोलते हैं। इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड सच एज 1 year, 3 years, 5 years. The customer cannot withdraw the money before the maturity period without certain conditions. Banks usually offer a higher rate of interest on fixed deposit. क्यों? क्योंकि लंबे टाइम तक वो बैंक के पास डिपॉजिट है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा मनी सेव करना चाहते हैं और फिर उस सेविंग को कलेक्ट करके एफडी के रूप में एक लॉन्ग पीरियड के लिए रख देते हैं। या जैसे कोई उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से सेल की, उससे उनके पास सडनली बहुत सारा पैसा आया, तो उसको वो एफडी के रूप में सेविंग ऑप्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। रिकरिंग डिपॉजिट में कस्टमर्स डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड, और एट द एंड ऑफ द पीरियड दे रिसीव द डिपॉजिटेड अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यानी कि बैंक जो है इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करता है। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन डिमांड डिपॉजिट की। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिमांड डिपॉजिट। अभी जो हम डिपॉजिट की बात कर रहे थे, तो ये डिमांड डिपॉजिट क्या है चिल्ड्रन? डिमांड डिपॉजिट are those deposits that can be withdrawn whenever the customer wants without giving any prior notice to the bank. यानी कि जो हमारा ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो ही डिमांड डिपॉजिट जिससे होता है, जिसमें हम कभी भी जो है अपना पैसा जब भी हमें नीड हो हम उसकी डिमांड बैंक से कर सकते हैं। तो हमारे जो सेविंग अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट्स हैं, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। यानी जब भी आपको मनी की ज़रूरत हो आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। दीज डिपॉजिट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस बिकॉज they provide easy and quick access to money. So students, हमने ये समझा कि बैंक क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कौन से हैं, एंड द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब हमें ये तो समझ आ गया कि बैंक जो है सिर्फ मनी रखने की जगह नहीं है, बल्कि ये पीपल की सेविंग, लोन्स और डेली ट्रांजैक्शन को इजी बनाता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। चिल्ड्रन, आज के टाइम में क्या ओनली कैश का ही यूज़ करते हैं हम? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ मनी के फॉर्म्स भी चेंज हो गए हैं। Today, money is available in many modern forms. Apart from cash, people use bank deposits, debit cards, credit cards, internet banking, mobile banking, UPI, digital wallets, and online transfer to make payments. These methods make transaction faster, safer, and more convenient. आज ज़्यादातर लोग कैश कैरी करने की बजाय यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
Modern forms of money have reduced the need to carry cash and have made our daily transaction much easier. Anything that has purchasing power. Now, children, let's understand another important concept. Why do we mean by purchasing power? What do we mean? ये purchasing power क्या है? Purchasing power means the ability to buy goods and services. Anything that is widely accepted for buying goods and services and has purchasing power can be considered money. यानी अगर किसी चीज़ से हम कोई सामान खरीद सकते हैं और लोग उसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें परचेजिंग पावर होती है. ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट. ये परचेजिंग पावर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चेक. क्या आपने कभी चेक देखा है या किसी को यूज़ करते हुए देखा होगा? है ना. ये पिक्चर यू कैन सी ऐसा ही दिखता है. तो चिल्ड्रन, चेक क्या होता है? अ चेक इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एन अकाउंट होल्डर to a bank to pay a certain amount of money to a specific person or organization. सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो चेक कैश का एक सेफ अल्टरनेटिव है जिसमें हमें कैश लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट इज़ अ सिक्योर एंड कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट्स without carrying cash. Now let's understand the features of a check. A check is a safe and convenient method of making payments. It is always issued by the account holder and can only be used if there is enough money in the bank account. हमारे बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तभी हम किसी को चेक दे सकते हैं. और इस चेक पर कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं चिल्ड्रन. ठीक है. जैसे डेट, नेम ऑफ द पे, अमाउंट कितना हमें देना है, सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर. अगर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, हमारे अकाउंट में बैलेंस कम होगा तो चेक क्लियर नहीं होगा. बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स check are considered a secure mode of payment. Essential components of a check. जैसे अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि every check has certain important parts. जिसमें क्या क्या आता है? डेट है, नेम ऑफ द पे, अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स, सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, चेक नंबर, बैंक डिटेल्स. इन सभी डिटेल्स का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन. तभी चेक वैलिड माना जाता है और पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस होती है. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. टुडे पीपल यूज कैश, बैंक डिपॉजिट्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन ट्रांसफ़र. These methods make payments safer and more convenient. यानी आज की डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन पहले की कंपैरिजन में बहुत इजी हो गया है. तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने ये लर्न किया कि मनी
को किस तरह से सिंपल वे में यूज़ किया जाता है, उसका क्या कंसेप्ट है. We also understood how money evolved from the barter system to the modern digital world. We also learned the definition of money. Functions of money. Money in India. Different types of modern currency. Banks, their functions. Different types of deposits. Demand deposits. Modern forms of money and चेक्स. सो आई होप कि अब मनी का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, दैट मनी इज़ नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइफ, एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. चिल्ड्रन, अब जब मनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्रेडिट के बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि लोन्स और बोरोइंग इकोनॉमी में इतना इम्पोर्टेंट रोल ये हमारी इकोनॉमी में क्यों निभाते हैं. लोन्स और बोरोइंग इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में कि उनके बिना हम आज के वर्ल्ड की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. चिल्ड्रन, until then, keep learning, keep revising, and stay curious. Thank you for watching.